A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and Indian economic development. So from the previous few classes we will continuously revise the chapters. We have done numerous numerical questions of the income determination and the multiplier, as well as the national income and its related aggregates. Okay, so we have also studying some chapters like balance of payment, foreign exchange rate, as well as from the previous class we have started the new chapter, that is income determination and the multiplier. Okay, so in the last class we have already discussed what is the determination of the equilibrium level of income output and employment. So when we talk about the account according to Keynesian theory, so the equilibrium is found where the aggregate demand is equal to aggregate supply. Okay, so when we derive it, C plus I equal to C plus S, so that investment equal to saving in the case of equilibrium. Okay, so next topic that we have started, that is determination of the equilibrium by the AD and AS approach. Okay, so in this we have to study the two approach, that is determination of the equilibrium by the AD and AS approach and the determination of the equilibrium by saving and investment approach. So in the last class we have already completed the determination of the equilibrium by the AD and AS approach. So what is the meaning of the AD and AS approach, as well as we have seen the assumptions of the, when we are going to explain the AD and AS approach, we have draw also that one table, as well as we draw one diagram, as well as the observation of the that diagram. Okay, so till here we have already completed in the last class. Okay, so in today's class we are going to study the determination of the equilibrium by the saving and investment approach. Okay, so let's get started. Okay, so before starting the determination of the equilibrium by the AD and AS approach, first of all we have to discuss the adjustment mechanism of the AD and AS approach. So when the AD becomes more than the AS, so what will happen, and when the AD is less than the AS, so what will happen? Okay, so we have to also discuss this. So when if AD is greater than AS means कि जब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा. So when economy is planning to produce at OM1. Okay, so when we talk about the diagram, equilibrium is found here M, but there is also chances of M1 and M2 and M1. So this is your AS and this is AD. So this is the situation when AD becomes more than the AS, because this is the point of equilibrium. ये point क्या है, equilibrium का point है. तो उसके पहले हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जा रही है. जब लोग क्या कर रहे हैं कि डिमांड लोगों की ज़्यादा हो जा रही है, जो प्लानिंग है, प्लान्ड डिमांड है, इज मोर देन दी प्लान्ड एग्रीगेट supply. Okay, so what will happen in this case? So meaning is it refers to the excess of demand in relation to the supply. Means यहाँ पे demand क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है as comparison to supply. It means that buyers are planning to buy more goods and services than what producers are planning to produce. Means जो भी इकोनॉमी में बायर है वो क्या है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि वो ज़्यादा गुड्स को परचेज करेंगे एज कंपेरिजन टू जो सप्लायर है वो प्लान कर रहे हैं कि गुड्स को वो कितना प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, तो जितने भी कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा गुड्स को बाय करेंगे, जो सप्लायर हैं वो कितना गुड्स को सप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बायर्स हैं वो ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू सप्लाई कितनी कमोडिटी की हो रही है. फिर कह रहा है कि इम्प्लीकेशन, इसका इम्प्लीकेशन होगा क्या होगा. सो इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल और द स्टॉक ऑफ गुड्स स्टार्ट्स फॉलिंग. जब
डिमांड क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेरिजन टू सप्लाई। सप्लाई उतना गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो इन डैट केस जो भी इन्वेंट्री बचा है, जो भी स्टॉक है गुड्स का, वो क्या हो जाएगा, फॉल करने लगेगा, क्योंकि डिमांड लोगों की क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है, एंड कम्स बिलो द डिजायर्ड लेवल ऑफ मेंटेन फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। फिर वो क्या हो जाएगा कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करना था वो यहाँ से फॉल कर जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट से वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे एट OM1 पे आ जाएगा। फिर है so that in other words the available resources are not fully employed, जो भी available resources हैं वो क्या हो रहा है, fully employed नहीं हो रहा है। सो करेक्शन और एडजस्टमेंट, अगर इसको इकोनॉमी में करेक्ट करना है कि ये जो डिमांड क्या हो जा रही है वो बहुत ज़्यादा हो जा रही है एज कम्पेरिजन टू सप्लाई, तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे। सो टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्रीज एट द डिजायर्ड लेवल, अब हमें यहाँ पे जो भी इन्वेंट्री है और जो स्टॉक है उसका प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड ज़्यादा हो गई है और सप्लाई उतनी हो नहीं रही है। इस कंडीशन पे इन्वेंट्री जो है, स्टॉक जो है, उसका प्रोडक्शन हम ज़्यादा करेंगे। सो प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड प्रोडक्शन, जो भी प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्शन को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, बढ़ाएंगे। दिस रेजेस एम्प्लॉयमेंट लेवल, अब जब गुड्स का प्रोडक्शन करना होगा तो अल्टीमेटली इट्स क्रिएट द मोर एम्प्लॉयमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि जब गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमें क्या है कि डिफरेंट टेक्निक्स को लगाएंगे, तो लेबर्स क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, देन आउटपुट लेवल भी बढ़ेगा, जो प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स का वो भी बढ़ेगा एंड इन टर्न इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, एम्प्लॉयमेंट से आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट से एंड देन इनकम लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एंड दीज लेवल कीप राइजिंग टिल, ये जो लेवल है, ये जो हम सब एम्प्लॉयमेंट हो गया, आउटपुट हो गया और इनकम हो गया, ये तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक हम इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे नहीं आ जाते, जहाँ ई पॉइंट पे हम क्या देखते हैं कि AD क्या है, AS के इक्वल है। ठीक है, तब तक जो भी है एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इनकम को हम बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि ई पॉइंट से क्या हो गया, फॉल कर गया है, इस पॉइंट पे आ गया, जो क्या है यहाँ पे इकोनॉमी क्या है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, बस डिमांड क्या हो गई है, वो सप्लाई से ज़्यादा हो गई है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वहीं पे होगा जब AD AS को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे AD और AS एक दूसरे के इक्वल है। बट जब AD इज ग्रेटर देन AS हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, सप्लाई कम हो जा रही है। डिमांड ज़्यादा होने का मतलब है कि जो भी स्टॉक्स है गुड्स के, वो क्या हो रहा है, उनका ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, तो इन्वेंट्री जो है वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, अब इसका एडजस्टमेंट और मैकेनिज्म क्या था कि जो भी इन्वेंट्री है उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। उसको इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेंगे। जैसे ही प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को एक्सपैंड करते हैं, इन दैट केस वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी, देन आउटपुट लेवल बढ़ेगा, आउटपुट लेवल देन इनकम जनरेट होगा। जो इकॉनमी हमारी इस सिचुएशन पे आ गई थी कि जहाँ डिमांड ज़्यादा हो गया था सप्लाई से, अल्टीमेटली फिर वो उस पॉइंट पे वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका इफ AD इज ग्रेटर देन AS। अब यहाँ पे इफ AD इज लेस देन द AS, जब डिमांड क्या हो जा रही है, वो सप्लाई से कम हो जा रही है, मतलब यहाँ पे जो सप्लायर है इफ AD, ठीक है, जब यहाँ पे सप्लायर क्या है, वो कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा कर रहा है बट डिमांड उतनी हो ही नहीं रही है। ठीक है, सो मीनिंग इट मीन्स दैट बायर्स आर कंज्यूमिंग एंड स्पेंडिंग लेस। ओके, जो बायर हैं और जो कंज्यूमर हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना जो स्पेंडिंग है वो क्या कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर पे नहीं कर रहे हैं। एंड प्लानिंग टू बाय लेस देन दी व्हाट सेलर आर प्लानिंग टू सेल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो बायर्स हैं वो प्लान ये कर रहे हैं कि वो गुड्स को कम परचेज करेंगे, बाय करेंगे, एज कंपेरिजन टू जो सेलर है जो प्लान करें कि वो इतने गुड्स को सोल्ड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्लान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इम्प्लीकेशन क्या होगा, दिस विल लेड टू एक्यूमुलेशन और ऑफ इन्वेंट्रीज विद द प्रोड्यूसर। अब इसके बाद क्या होगा कि जो इन्वेंट्रीज है, स्टॉक्स हैं, वो सप्लायर के पास और प्रोड्यूसर्स के पास बचे रहेंगे, क्योंकि डिमांड हम उतनी कर ही नहीं रहे हैं, कोई भी बायर डिमांड कर नहीं रहा है। इन दैट केस सप्लायर क्या करेगा, उसका जो इन्वेंट्री है वो वैसे की एक्यूमुलेट और बची रह जाएगी। फिर
इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर आर लेफ्ट विद द अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। इसमें क्या होगा, प्रोड्यूसर्स के पास जो अनसोल्ड स्टॉक है वो उसके पास बचे रहेंगे। इसका करेक्शन और एडजस्टमेंट की बात जब हम करते हैं, टू अवॉइड फर्दर एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कि आगे भी ये जो इन्वेंट्री है वो एक्यूमुलेट हो, वो बची रह जाए, स्टोर रहे, सो प्रोड्यूसर विल रिड्यूस प्रोडक्शन। अब क्या करेगा प्रोड्यूसर, जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा था उसको वो कम कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो सारी इन्वेंट्रीज है। फर्दर प्रोडक्शन करेगा तो उसको सप्लायर को लॉस ही होगा। यहाँ पे इसीलिए बोला जा रहा है कि वो प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देगा। सो दिस रिड्यूसेस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये जो कंडीशन यहाँ से इक्विलिब्रियम के पॉइंट से ऊपर चली गई है, जहाँ पे AS इज मोर देन द AD, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब जैसे ही प्रोडक्शन रुकेगा तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी क्या हो जाएगा, कम होगा। एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो आउटपुट कम होगा, एंड देन आपका क्या है कि इनकम लेवल भी कम हो जाएगा। तो जो हम लोग इस ई पॉइंट से आगे बढ़ गए थे, तो अल्टीमेटली हम लोग फिर से वापस ई पॉइंट पे चले जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली एम हमारा क्या है कि AD क्या होना चाहिए, AS के इक्वल होना चाहिए। इकॉनमी में ना हम इसकी बात करते हैं कि AD इज ग्रेटर देन AS, और ना ही हम इकॉनमी में बात करते हैं कि AD इज लेस देन AS। तो इकॉनमी में अगर हम बात करते हैं तो वो क्या है कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होनी चाहिए, जहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो, राइट। अब पढ़ते हैं हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम बाय सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो यहाँ तक आपका क्या है कि AD-AS अप्रोच खत्म हो गया है, जिसमें क्या है कि अगर क्वेश्चंस आते हैं आपको, तो आपको पूरा ये सारा इसका इम्प्लीकेशन से लेके ये सब लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर बात करेंगे टोटल आंसर की तो इसमें सारा होगा कि आपको अजम्पशन, टेबल, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, और अगर ये इम्प्लीकेशन पूछ रहा है कि इफ AD इज ग्रेटर देन AS एंड इफ AS is greater than AD, so what will happen in the economy? So you have to explain all these things. Next one is determination of determination of equilibrium by saving and investment approach. Okay. So investment is denoted by I. Okay. So determination of equilibrium by saving and investment approach. So according to this approach, the equilibrium level of income, output and employment is determined at a point where planned or extant saving are equal to planned or extant investment. इक्विलिब्रियम अगर हम लोग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ पे होती है, जहाँ पे प्लान्ड सेविंग और प्लान इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग को पढ़ते हैं कि हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं AD इक्वल टू AS। ठीक है, AD को अगर हम लोग क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, C प्लस आई होता है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, AS इज कंजप्शन प्लस सेविंग, सो I इक्वल टू S। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन वही होती है जहाँ पे I क्या है, सेविंग के इक्वल है, इनका इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दी सेविंग। सो द फॉलोइंग टेबल इज बेस्ड ऑन दी टू assumption. Here we will make a table. Before this we will take a two assumption of it. Assumptions. Okay, so here the first planned level of investment is ₹100 crore. Delta I is ₹100 crore.
and C is 50 plus 0.5 y. यहाँ पे आपको पता है 50 क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है, 0.5 क्या है, MPC है, एंड y इज इनकम. ओके, सो वी विल ड्रॉ टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. Y C S I AD equal to C plus I and AS equal to C plus S. ये सेम टेबल है जो हम लोगों ने कल भी बनाया था. ठीक है, सो 0, 100, 200, 300, 400, 500. C is 50, 100, 150, 200, 250 and 300. S will be minus 50, 0, 50, 100, 150 and 200. I will be 100, 100, 100. It will be the same at all level of income. Then AG निकालना है यहाँ पे, तो AG क्या होता है, C plus I. C plus I 150, 200, 250, 300, 350, 400. ओके, सो AS क्या होता है, AS इज इक्वल टू C प्लस S, कंजप्शन प्लस सेविंग. 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Okay, so the table is completed. So table 8.2 shows. Okay, so here we are going to draw a diagram. So you have to explain it with the help of two diagrams simultaneously. आपको यहाँ पे क्या है कि दो डायग्राम बनाना पड़ेगा, कि जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग को अलग दिखाना पड़ेगा और एजी और एएस को भी दिखाना पड़ेगा. ओके, सो हियर वी विल टेक दी एडी एंड एएस. एडी एंड एएस इधर क्या लेंगे हम लोग, सेविंग और इन्वेस्टमेंट. एक्स एक्सिस पे वही इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट. सो इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो आपको पता है कि सेविंग क्या हो रही है, माइनस में हो रही है. ठीक है, तो हम लोग को ये लाइन को माइनस में लेके जाना पड़ेगा. यहाँ से हम लोग, ये आप लोग के पास टेबल है, टेबल से आप लोग एडी एंड एएस को देख के बना लीजिए. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500. Next one is 100, 200, 300, 400, 500. यहाँ पे हम लोग को पास क्या है, -50.
minus 50, 50, 100. We'll take as 100. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइन को ड्रॉ करना है। AD और AS को यहाँ पे देख के ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। सो पॉइंट ये सारे क्या हैं, आपको ऐसे देखना है कि 150 कहाँ पे आएगा, 150 और 0, 200 और 100, 250 और 200, 300, 300। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट आपका क्या है, 150, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। वहां पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे AD क्या हो रहा है, AS के इक्वल हो रहा है। देखिए ये सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन जो हो रही है, यहाँ पे AD क्या है, AS के इक्वल है एट दी 300 इनकम। जब इनकम क्या है, ₹300 है, तो यहाँ पे AD क्या हो रहा है, AS के इक्वल हो रहा है, 300, 300। यहाँ पे हमने बना दिया, दिस इज AS, दिस इज AD, this is the point of equilibrium, that is M1, M2. okay, so it will shows as E। यहाँ पे अब देखिए I क्या है, हर एक लेवल पे 100 है, तो हम लोग ये क्या कर देंगे, it becomes the parallel to the x एक्सिस के वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, दैट इज I। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि 300 लेवल पे क्या हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम पे फाइंड आउट होगा, क्योंकि 300 पे AD और AS एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। सेविंग आपका -50 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग इसको माइनस से स्टार्ट करेंगे। दिस पॉइंट पे, दैट इज E पॉइंट। अब हम लोग इसको यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हो गई, दिस बिकम S, दिस विल बी I, AD इक्वल टू, सॉरी, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आपको अब आप आई विल ड्रॉ एज अ, मैं क्या कर रही हूँ, रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप लोग क्या करोगे, स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये एकदम स्ट्रेट पॉइंट पे आएगा जी, जहाँ पे क्या होगा कि ये 300 पे होगा। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हम लोग का इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है, एट दी 300, जब लेवल ऑफ इनकम पे AD क्या हो रहा है, AS के इक्वल हो रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन हो गई है। सेम हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, right, this will be M, M1 and M2, okay। so इसको हम लोग एक नेम दे देते हैं, पार्ट A और A only and the part B। तो जब भी आप क्या करोगे, आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच को दिखाना पड़ेगा, so you have to draw two diagram simultaneously। आपको दोनों ही डायग्राम बना के इसको शो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लाइन आपको पता है कि कहाँ से आ रही है, क्योंकि हम लोग को ये हमने देखा कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है, जहाँ पे AD इक्वल टू AS है, यहीं पे इक्विलिब्रियम भी क्या हो रहा है, फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हमने बना दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज ₹300 करोड़, ₹300 करोड़ है, इज दैट एज दिस इक्वल लेवल S इक्वल टू I इक्वल टू 100। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है, S इक्वल टू I। देखिए 100 और 100 एक दूसरे के यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं। फिर कह रहा है बिफोर द इनकम लेवल, जब आपका क्या था, इनकम लेवल के बिफोर की जब हम बात करते हैं, जब ये इक्विलिब्रियम की बात आ रही है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द सेविंग। देखिए जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है वो इन्वेस्टमेंट की जो लाइन है वो सेविंग के ऊपर है। सो इस कंडीशन पे इन्वेस्टमेंट इज मोर देन दी सेविंग। इन्वेस्टमेंट क्या है, ज़्यादा है सेविंग से,
फिर आफ्टर दिस इनकम लेवल, इस इनकम लेवल के बाद देखिए सेविंग कर्व ऊपर जा रहा है, बट आई क्या है वो पैरेलल है, तो यहाँ पे आप देखिए सेविंग ज़्यादा हो जा रहा है एज कंपेरिजन टू आई। फिर ऑब्जर्वेशन में कह रहा है पार्ट बी का, एंड द डायग्राम 8.4 हैज बीन डिराइव फ्रॉम पार्ट ए। ये आपको पता है कि जो पार्ट बी है, ये जो है डायग्राम, वो कहाँ से डिराइव हुआ है, यहीं से, क्योंकि ए डी इक्वल टू ए एस होता है, दैट्स वाई हम वहाँ पे बात करते हैं कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। सो ए डी इक्वल टू ए एस, देन वहाँ से सी प्लस आई इज इक्वल टू सी प्लस एस, हम लोग के पास क्या बचा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। सो इन्वेस्टमेंट कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनॉमस, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या है, ऑटोनॉमस है। एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आउटपुट 300 इज डिटरमाइंड पॉइंट E1, इस एक नेम इसको क्या दे दीजिए, E1, क्योंकि यहाँ पे हमने E दिया, इसको E1, ठीक है। फिर ये हो गया आपका डायग्राम, आप फिर मैंने वही सेविंग इन्वेस्टमेंट बताना पड़ेगा, आपको अजम्पशन देना पड़ेगा, अजम्पशन के बाद टेबल बनाना पड़ेगा, टेबल के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम, डायग्राम के बाद देन ऑब्जर्वेशन, एंड द लास्ट जो इसका है वो है एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और इम्प्लीकेशंस ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम। ये जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है इकोनॉमी में, जब सेविंग क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, और जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जा रहा है सेविंग के, तो इसको क्या ऐसे करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन दी सेविंग, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रहा है एज कंपेरिजन टू सेविंग, ओके, so it refers to the excess of AD in relation to the excess aggregate supply, क्योंकि अभी क्या है, जो लोग हैं, बायर्स हैं, वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट मीन्स AD क्या हो जा रहा है, वो AS से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट बायर्स प्लान टू कंज्यूम मोर एंड सेव लेस देन दी व्हाट प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस। यहाँ पे जो भी बायर है वो क्या कर रहा है, वो ये प्लान कर रहा है कि वो बाय ज़्यादा करेगा और सेव कम करेगा। सो इम्प्लीकेशन क्या है, इन दिस सिचुएशन इन्वेंट्री लेवल ऑफ स्टॉक स्टार्ट्स फॉलिंग, कि जब डिमांड ज़्यादा हो जा रही है, इसका मतलब क्या है कि इन्वेंट्री जो है, स्टॉक क्या है, वो कम हो जाएगा, ठीक है। फिर करेक्शन, अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, सो टू ब्रिंग बैक द इन्वेंट्री एट द डिजायर्ड लेवल, प्रोडक्शन एक्सपैंड, प्रोड्यूसर्स एक्सपैंड प्रोडक्शन। अब इसको वापस हमें इस पॉइंट पे लेकर आना है जहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, प्रोडक्शन को एक्सपैंड कर देंगे, ठीक है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे। जैसे वो प्रोडक्शन को एक्सपैंड करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इनकम लेवल बढ़ेगा, फिर हम लोग इसी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रीच आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन सेविंग इज मोर देन दी इन्वेस्टमेंट, कि जब सेविंग क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है एज कंपेरिजन टू इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस बायर लेस एंड सेविंग मोर। अभी यहाँ पे जो भी बायर है वो क्या कर रहे हैं, सेव ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस कंडीशन पे सेविंग क्या हो रही है, फर्म आर कंज्यूमिंग लेस, मतलब जो बायर्स आर कंज्यूमिंग लेस, जो भी बायर्स हैं वो लेस कंज्यूम कर रहे हैं, सेविंग मोर, सेव क्या कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज जो है, जो स्टॉक है, वो क्या होगी, प्रोड्यूसर्स के पास रह जाएगी। इन अदर वर्ड्स प्रोड्यूसर आर लेफ्ट विद दी अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स। यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उनके पास अनसोल्ड स्टॉक हो रह जाएगा गुड्स का। इसको अगर करेक्शन और एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे जो भी बायर्स हैं, जो भी सेलर्स और जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास अनसोल्ड स्टॉक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि वो प्रोडक्शन कम कर देंगे, जैसी प्रोडक्शन कम कर देंगे एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट हम प्रोवाइड करके किसी को क्या करेंगे, तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा एंड देन इनकम लेवल भी लोगों एम्प्लॉयड जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी लेबर्स हैं, उनकी इनकम क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। फिर जो हम लोग सेविंग इस साइड में आ गए थे, इक्विलिब्रियम के राइट साइड में आएगा, अल्टीमेटली वी रीच टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। So this is all your determination of the equilibrium by the AD and AS approach and the determination of the equilibrium by saving and investment approach. Okay.
So in next class we will discuss about the equilibrium level of employment.